Assalamualaikum class, how are you? Hope you are fine. Class, let's start our today's lecture, that is building your business presentations. यानी आप अपने business की presentation को किस तरह से build कर सकते हैं. Kindly open page number 403. After considering design principles and their effects, you are ready to start putting together your presentation. In this section, you will learn how to organize and compose your presentation, which templates to choose, and how to edit, proofread, and evaluate your work. Number one is organizing your presentation. आप अपनी presentation को किस तरह से organize कर सकते हैं? When you prepare your presentation, translate the major headings in your online outline into titles or slides. यानी आप slides में अपनी outline बना सकते हैं. Then build bullet points using short phrases. Then build bullet points using short phrases. In step number 4, you learn to improve readability by using graphic highlighting techniques, including bullets, numbers, and headings. Okay, it's all about the Microsoft Word. इसमें आप जानते हैं किस तरह से आप bullets लगा सकते हैं या numbers लगा सकते हैं. The slides or canvas you create to accompany your spoken ideas can be organized with visual elements that will help your audience and understand and remember what you want to communicate. Let's say, for example, that you have 3 points in your presentation. यानी for example, आपकी presentation में आपके पास 3 points हैं. You can create a blueprint slide that captures the key points in a visually appealing way, and then you can use that slide several times throughout your presentation. Near the beginning, the blue print slide provides an overview of your points. Later, it provides transitions as you move from point to point. From transition, you can direct your audience's attention by highlighting the next point you will be talking about. Finally, the blueprint slide can be used near the end to provide a review of your key points. Okay, यानी ये चीजें हम नोट डाउन कर लेते हैं कि किस तरह से हम अपने ऑर्गेनाइज कर सकते हैं प्रेजेंटेशन को, जिनमें हम बुलेट पॉइंट्स लगा सकते हैं या फिर उनको किस तरह से हम बिगिनिंग में क्या लिखे आएंगे और एंड पे क्या लिखे आएंगे. कंपोजिंग उसके बाद है कंपोजिंग योर प्रेजेंटेशन. अपनी प्रेजेंटेशन को आप कंपोज किस तरह से कर सकते हैं. During the composition stage, many users fall into the trap of excessive formatting and programming. They fritter away precious time fine-tuning their slides or canvas, or don't spend enough time on what they are going to say and how they will say it. To avoid this trap, set a limit for how much time you will spend making your slides or canvas really appealing. Your time limit will be based on how many bells and whistles your audience expects and your content requires to make it understandable. ठीक है, यानी आप इसको understandable बनाने के लिए आप कौन से points जो हैं वो इसको उसमें add करना चाहते हैं. Remember that not every point nor every content requires to make it under not every thought requires a visual. In fact, it's smart to switch off the presentation occasionally and direct focus to yourself. Darkening the screen while you discuss a point. Tell and direct the focus to yourself. Tell a story, give an example, or involve the audience will add variety to your presentation. यानी अगर आप एक स्टोरी के जरिए से आप एग्जाम्पल ऐड करते हैं, इसके जरिए से आप प्रेजेंटेशन देते हैं, डेफिनेटली जो ऑडियंस है वो आपकी तरफ मोटिवेट हो जाएगी. Create a slide or canvas only if it accomplishes at least one of the following purposes. ठीक है, अपनी स्लाइड को accomplish करें अगर ये दरअसल आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल करती है. Number one, generates interest in what you are saying and helps the audience follow your ideas. Highlights points you want your audience to remember. Introduces or reviews your key points. Provides a transition from one major point to the next. Illustrates and simplifies complex आइडियाज. ठीक है, उसके बाद वर्किंग विद टेम्पलेट्स. बहुत सारे जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं जिनको हम यूज करके हम अपनी स्लाइड्स को ज्यादा अच्छा बना सकते हैं. All presentation programs require you to select or create template that will serve as the background for your presentation and make each
and make select or create a template that will serve as the background for your presentation and make each slide by selecting a layout that best conveys your message. Novice and even advanced users often choose existing templates because basically जो आपके पावर पॉइंट के अंदर जो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं जो टेम्पलेट जो ऑलरेडी जैसे सैंपल पड़े होते हैं जैसा कि ये आपके सामने एक स्लाइड दी जा रही है इस स्लाइड का जो पैटर्न है जो टेम्पलेट है ये ऑलरेडी ये जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर है because they are designed by professionals who know how to combine harmonious colors, uh, borders, bullet styles, and fonts for pleasing visual effects. If you prefer, you can alter existing templates so they better suit your needs. Adding a corporate logo, adjusting the color scheme to better match the colors used on your organization's website, or selecting a different font are just some of the ways you can customize existing templates. One big advantage of templates is that they get you started quickly. Okay, यानी templates अगर already बना हो तो आप इसके लिए इसका अंडरलाइन कर लें कि सबसे पहला बेनिफिट इसमें क्या है कि आप उसको आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं. You can get it started quickly. Be careful though of what one expert has labeled visual glitches. Overused templates and clip art that come pre-installed with PowerPoint, SlideRocket, and Prezi can vary viewers who have seen them repeatedly in presentations. Instead of using a standard template, search for PowerPoint template, SlideRocket template. ये आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं जिनमें SlideRocket template है, Prezi, ठीक है, उसके बाद है पावर पॉइंट टेम्पलेट, स्लाइड रॉकेट टेम्पलेट और प्रेजी टेम्पलेट इन योर फेवरेट सर्च टूल. यू विल सी हंड्रेड्स ऑफ टेम्पलेट्स अवेलेबल एज फ्री डाउनलोड. अगर आप आज ही आप अगर सर्च करेंगे prezi.com पे तो आप देखेंगे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं जिनमें आपको बहुत सारी वैरायटी बहुत ज्यादा है उसमें. यानी यहाँ पावर पॉइंट पे हमारे पास दो चार टेम्पलेट्स होते हैं लेकिन वहाँ पे हमारे पास मल्टीपल टेम्पलेट्स हैं. Okay, unless your employer requires that presentations all have the same look, your audience will appreciate fresh templates that complement the purpose of your presentation and provide visual variety. Revising and proofreading. उसके बाद जब आपने अपनी presentation का एक template बना लिया उसके बाद revising and proofreading का आ जाता है कि आप उसको revise करें फिर proofread करें. Use the PowerPoint slide sorter view to rearrange, insert and delete slides during the revision process. You can also use the Prezi editor to make any necessary changes. Use the PowerPoint slide starter view to rearrange, insert, and delete slides during the revision process. You can also use the Prezi editor to make any necessary changes to your canvas. यानी definitely वही चीज कि हम Prezi editor को use कर सकते हैं कोई भी हम change लाने के लिए. This is the time to focus on making your presentation as clear and concise as possible. यानी इसके जरिए से हम अपनी presentation को बहुत concise और possible बना सकते हैं. If you are listing items, be sure they all use parallel grammatical form. The figure shows how to revise a PowerPoint slide to improve it for conciseness, parallelism, and other features. Study the design tips described in the first slide and determine which suggestions their author did not follow. Then compare it with the revised slide. यानी आप इसको पहले एक स्लाइड बना सकते हैं फिर इसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, और फिर डेफिनेटली आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं. As you are revising, check carefully to find spelling, grammar, punctuation, and other errors. ठीक है, जब आपने एक चीज बना ली तो आप उसको इसके errors को find out कर सकते हैं. Use the PowerPoint, SlideRocket और Prezi spell checker feature, but don't rely on it solely. यानी इस पे completely आप rely ना करें. Sometimes कुछ एक spelling जो है वो जैसे pair of words हैं तो उसमें दोनों के spelling sometimes same होते हैं लेकिन pronunciation जो है वो different होती है. Nothing is as embarrassing as projecting errors on a huge screen in front of an audience.
Also check for consistency in how you capitalize and punctuate points throughout the presentation. Evaluating your presentation, आप अपनी presentation को किस तरह से evaluate कर सकते हैं. Finally, critically evaluate your slideshow. Is your message presented in a visually appealing way? Have you tested your slides on the equipment and in the room you will be using during your presentation? Do the colors you selected work in this new setting? Are the font styles and sizes readable from the back of the room? The dark purple background and the matching hues in the slideshow shown in figure are standard choices for many business presentations. With an unobtrusive dark background, white fonts are a good option for maximum contrast and hence readability. The creator of the presentation varied the slide design to break the monotony of bulleted or numbered lists. Images and animated diagrams add interest and sync to the slide. Okay, उसके बाद 7 steps to making a powerful multimedia presentation. एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के लिए 7 स्टेप्स हैं, वो हम देख सकते हैं कि वो कौन कौन से हैं. नंबर 1 इज स्टार्ट विद द टेक्स्ट. टेक्स्ट के साथ स्टार्ट करें. नंबर 2 सिलेक्ट बैकग्राउंड एंड द फॉन्ट्स. सेलेक्ट बैकग्राउंड एंड फॉन्ट्स, यानी उसके बाद आप बैकग्राउंड और फॉन्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं. देन चूज इमेजेस दैट हेल्प कम्युनिकेट योर मैसेजेस. ऐसे इमेजेस को चूज करें, यानी ऐसी पिक्चर्स को चूज करें जो आपके मैसेज को कन्वे कर सके. क्रिएट ग्राफिक्स, उसके बाद आप देख सकते हैं आप ग्राफिक्स बनाएं. ऐड स्पेशल इफेक्ट्स, स्पेशल इफेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं. उसके बाद क्रिएट हाइपरलिंक्स, हाइपरलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं. मूव योर प्रेजेंटेशन ऑनलाइन, ऑनलाइन अपनी प्रेजेंटेशन को मूव अप करें. ठीक है. देन पॉलिशिंग योर डिलीवरी एंड फॉलोइंग अप, यानी आप अपनी जैसे कि आप डिलीवर करने जा रहे हैं प्रेजेंटेशन को, जो आप बोल रहे हैं डेफिनेटली यू आर डिलीवरिंग दैट स्पीच, तो उसको आप किस तरह से पॉलिश कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स को आप फॉलो करेंगे. नंबर 1 इज चूजिंग ए डिलीवरी मेथड. अपने डिलीवरी मेथड को चूज करें. Inexperienced speakers often hold on to myths about public speaking. They may believe that they must memorize an entire presentation or read from a manuscript to be successful. Let's debunk myths and focus on effective delivery techniques. While memorizing your presentation, उसके बाद अपनी presentation को memorize करने से ग्रेस करें, यानी आप points को याद ना करें. अगर आप याद करेंगे तो definitely आप सिर्फ वो point ही आप पुट कर सकेंगे, उसके जरिए से आप एग्जाम्पल नहीं दे सकते, आप उसको डिस्कस नहीं कर सकते. तो ये चीजें जो है ये प्रेजेंटेशन के हवाले से ठीक नहीं है कि आप उसको मेमोराइज करें. डोंट रीड फ्रॉम योर नोट्स. बेसिकली जो प्रेजेंट आप कर रहे हैं, तो अगर आप अपने नोट से रीड करेंगे तो डेफिनेटली वो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं करेगा. कोशिश करें कि उसको आप इस अंदाज से जी. देन डोंट रीड फ्रॉम योर नोट्स, ठीक है, एंड डिलीवर योर प्रेजेंटेशन extemporaneously. The best plan for delivering convincing to the business presentation by far is it to speak extemporaneously, especially when you are displaying a multimedia presentation such as PowerPoint, slideshow, slide rocker, slideshow, or Prezi Canvas. Extemporaneous delivery means speaking freely, generally without notes, after preparing and rehearsing. This includes commenting on the multimedia visuals you have prepared, reading notes or a manuscript in addition to a PowerPoint slideshow. Slide rocker slides or a Prezi canvas will damage your credibility. Then know when notes are appropriate. ये जाने कि कब notes जो है वो appropriate होंगे. If you give a talk without multimedia technology, you may use note cards or an outline containing key sentences and major ideas, but beware of reading from a script. In script से आप read out ना करें. By preparing and then participating with your notes, you can use them while also talking to your audience in a conversational manner. Your notes should be neither entire paragraphs nor single words. Instead, they should contain a complete sentence or two to introduce each major idea. Below the topic sentences, outline subpoints and illustrations. Note cards will keep you on track and prompt your memory, but only if you have rehearsed the presentation thoroughly. इसके बाद आ जाइए बिफोर योर प्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंटेशन से पहले आप क्या करेंगे.
यानी प्रिपेयर थॉरली, सबसे पहले आप उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, रिहर्स रिपीटेडली, कंटिन्यूसली आप उसको रिपीट करेंगे, देन टाइम योरसेल्फ, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें, यानी थोड़ा सा रेस्ट करें, रिलैक्स हो, ड्रेस प्रोफेशनली, एक अच्छा ड्रेस पहने, रिक्वेस्ट लेक्ट्रन, ठीक है, यानी रिक्वेस्ट लेक्ट्रन जो आप डिलीवर करने जा रहे हैं उसके लिए आप रिक्वेस्ट करें, सो दैट द ऑडियंस जो है वो आपको अंडरस्टैंड कर सके। यानी आपको कोई नोट डाउन करने वाला हो, चेक द रूम को चेक करें, यानी जिस रूम में आप जा रहे प्रेजेंट करने जा रहे हैं वो रूम आपका कंफर्टेबल है, उसमें नॉइज तो नहीं है, कंप्यूटर है आपका, प्रिंटर है, हर चीज आपके पास होनी चाहिए। मीट मेंबर्स ऑफ द ऑडियंस, ऑडियंस के मेंबर्स के साथ आप मिले जुले, प्रैक्टिस स्ट्रेस रिडक्शन, if you feel tension and fear while you are waiting to speak, use stress reduction techniques such as deep breathing, additional techniques to help you conquer stage fright as presented in the figure. No matter how much time you put into pre-show setup and testing, you still have no guarantee that all will go smoothly. Therefore, always bring backups of your presentation. Over here, transparencies and handouts of your presentation provide good substitute. Transferring your presentation to a CD or a USB flash drive that could run from any available computer might prove useful as well. ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन, अब ये तो था प्रेजेंटेशन से पहले अपने आप को आपने रेडी करना था। अब ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन आपने क्या करना है, स्टार्ट विद द पॉज, एक वक्फे के साथ आप स्टार्ट करें, मेंटेन आई कांटेक्ट, कंट्रोल योर वॉइस, शो एंथुसियाज्म, ठीक है, स्किप द अपोलोजाइज, किसी किस्म के आप जो अपोलोजाइज है उसको फिलहाल स्किप कर देंगे आप जब आप लेक्चर को डिलीवर करेंगे यानी प्रेजेंटेशन देंगे। स्लो डाउन एंड नो व्हेन टू पॉज, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कहाँ पे आपने वक्फा करना है, यानी आपने पॉज देना है। मूव नेचुरली, यूज विजुअल एड्स इफेक्टिवली, विजुअल एड्स जो है वो आप मल्टीमीडिया भी यूज कर सकते हैं या इसके अलावा भी आप जो विजुअल एड्स यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। समराइज योर मेन पॉइंट्स, उसके बाद अपने मेन पॉइंट्स को समराइज करें। आफ्टर योर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के बाद आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट हैंडआउट्स, अपने हैंडआउट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एनकरेज क्वेश्चन बट कीप कंट्रोल, क्वेश्चन को एनकरेज करेंगे लेकिन अपने आप को कंट्रोल रखें, रिपीट क्वेश्चन, रीइंफोर्स योर मेन पॉइंट्स, अपने मेन पॉइंट्स को रीइंफोर्स करें, अवॉइड यस, यस कहने में अवॉइड करें, बट आंसर, लेकिन आंसर जरूर दें, ये नहीं कि मतलब आप आंसर ही ना दें, आप आंसर लाजमी दें, लेकिन हर बात को अगर आप यस करेंगे तो ये भी ठीक नहीं होगा। एंड विद द समरी एंड एप्रिसिएशन, समरी और एप्रिसिएशन के साथ इसको एंड कर। It's all about chapter number 12. Now you can ask question, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। अभी इसको आप पढ़िए, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके क्लास, आज आपकी ग्रुप में एक मैं असाइनमेंट जो है वो सेंड कर दूंगी, ठीक है, आपने वो लाजमी सेंड करनी है। LMS पे आपको वो असाइनमेंट में क्रिएट कर दूंगी, वहां पे आपने सबमिट करनी है। LMS के अलावा कहीं भी आपकी असाइनमेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, ठीक है। मैम मुझे नहीं शो होता कुछ भी। जी, मुझे शो नहीं होता कुछ भी, ना लेक्चर ना असाइनमेंट वगैरह कुछ भी नहीं। आप उसमें ऐड नहीं है LMS पे? मैम ऐड हूँ, लेकिन मैं मैम अलहदा बाकी स्टूडेंट से अलहदा ऐड हूँ, 4-5 मेरे साथ हैं बस। आप किस क्लास के हैं? मैम मैं 4 का हूँ, ADP सेमेस्टर 4 का हूँ, मैं उनसे अलहदा हूँ, ये 3rd के हैं बाकी। चले आप ऐसा करें, मुझे अपना रोल नंबर और अपना पूरा नेम सेंड करते हैं, मैं आपको किसी क्लास में ऐड कर देती हूँ, ठीक है। तो सिर्फ आप एक ही हैं? जी मैम। चले मैं आपको किसी एक क्लास में ऐड कर देती हूँ, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम लेक्चर्स भी और बाकी असाइनमेंट वगैरह भी या क्विज़ेस वगैरह भी। आपने पहले क्यों नहीं बताया, तो आपका तो इस तरह से बहुत सारा लॉस हो जाना था। बताया हुआ मैम आपने ठीक है, व्हाट्सएप पे। बल्कि मैं कोशिश करती हूँ कि अभी आपको ऐड कर दूँ वहाँ पे। इसके अलावा तो किसी स्टूडेंट को कोई मसला नहीं है?
जी क्लास जैसे ही सेकेंड जैसे ही ये मीटिंग एंड होगी, इसी लिंक को आप दोबारा ज्वाइन करने से आप दोबारा क्लास में एंटर हो सकेंगे। जी तलहा आप ऐड हैं SM4 में, आप ऐड हैं मेरे पास तो यहाँ पे। तो मैम वो देखें शो कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं नहीं मैं बिल्कुल आपको ये बात ऐसा, गलत है कि आपको आपको शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप अगर ऐड हैं तो आपको डेफिनेटली शो हो रहा है। मैम मैंने कौन सा झूठ बोलना है, मैंने आपको ऐसा सेंड कर दिया, देख लें आप। आप जो ना यहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन SM4 में आप शो हो रहे हैं। मोहम्मद उमैस आशिक हैं, मोहम्मद असलान है, अब्दुलरहमान है, तलहा नूरुल है। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि आप लोग आपको कुछ यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। मैंने व्हाट्सएप पे ऐसा सेंड किया, देखें जरा एक बार वो मुझे, मैं मतलब उसे लोडिंग भी किया है तो रिफ्रेश भी किया, वो नहीं हो रहा शो थोड़ा सा कुछ भी। लाउडली बोले, मुझे आवाज नहीं आपकी आ रही। मैंने कहा मैंने रिफ्रेश भी किया है तो कुछ भी नहीं शो हो रहा उसमें, डेट्स में ना लेक्चर हो रहा है ना कुछ हो रहा है। आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजें, आपको शो क्या हो रहा है। मैम मैंने सेंड कर दिया। हैरत की बात है वैसे ये मुझे, ये आप फिर मैडम राबिया से डिस्कस करें कि आपको क्यों नहीं शो हो रहा है यहाँ पे। अगर मुझे आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पे शो हो रहे हैं तो इसमें तो जितनी चीजें हैं वो शो हो रही हैं। मैम मैंने मैम राबिया को भी मैसेज किया, सर शबीर को भी किए हैं। सर शबीर कहते हैं मैं आधी रात को मैसेज करता हूँ, तो मैं इस बात पे हंस पड़ा क्योंकि मैं तो मैम दिन को करता हूँ मैसेज उनको, और फोन भी किया वो उठाते ही नहीं है, रिस्पॉन्स ही नहीं देते। लेकिन ये जितनी जल्दी आप हो सके अपना ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करवाएं कि यहाँ पे अगर मेरे पास अगर आप ऐड ना होते ना तो मैं आपको यहाँ पे ऐड कर देती। मैम अब मैं कैसे सोल्व करूँ ना, मैम राबिया अब आगे से रिप्लाई करते हैं ना सर शबीर, उन्होंने कहा था मंडे को हो जाएगा, और आज मंडे गुजर गया, ट्यूसडे हो गया। ये नहीं मुझे बात समझ आ रही। आपके इस ग्रुप में जो बाकी लोग हैं, अब्दुल रहमान है, उनसे पूछिए उनको शो हो रहे हैं चीजें। अब मैम ना उमर को हो रहे हैं ना मुझे हो रहे हैं, मतलब एक दो को हो रहे हैं, बाकियों को नहीं हो रहे है। कुछ सब्जेक्ट में है ये मसला। उमैर को भी नहीं हो रहा, अरसलान को भी नहीं हो रहा। नहीं नहीं, ये फिर पीछे से कोई प्रॉब्लम है, आप ये देखें। मैम फिर असाइनमेंट वगैरह का तो क्विज, वो टाइम गुजर जाएगा ना, ऐसे मसला होगा। आपका उधर यूनिवर्सिटी में नेम क्या है। मैम यूनिवर्सिटी में भी तला ही होगा। हम्म, मैम यूनिवर्सिटी में भी तलहा ही है। ये पूरा नेम क्या है। तलहा नूरुल ऐन। सही। चले बहरहाल आप उनसे रब्ता करें अगर आपको नहीं ये शो हो रहा।
इधर मेरे पास आप ऐड हैं इसमें। मैम आपने असाइनमेंट अपलोड कर दी है? असाइनमेंट अभी करनी है अपलोड, सिर्फ मैं आप लोगों को बता रही थी कि आप अपने एलिमेंट्स जो है वो चेक कर लें। तो आज जी मैम अभी अभी फिलहाल वो एम्प्टी है, उधर कोई लेक्चर वगैरह भी नहीं मौजूद अभी फिलहाल। कोई प्रॉब्लम है ना, वहाँ पे तो पहले मैडम से बाकी बच्चों को तो हो रही है। लेक्चर्स मैम उस पे अपलोड किए हैं आपने? हाँ जी बिल्कुल, हर चीज जो बाकी तो लोगों के बीएमपी के या सीएस थर्ड हो रही है वो आप लोगों के भी हो रही है। नहीं मैम इधर जीरो एक्टिविटी शो हो रही है, कोई मतलब उधर एक्टिविटी नहीं है आपके वो जो बिजनेस कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट है। बाकी जो सब्जेक्ट है उनकी शो हो रही है 7%, 8%, जितने परसेंट उन्होंने डाटा अपलोड किया। इस पे मतलब अभी तक वो डाटा शो नहीं हो रहा कोई भी। अगर तो सिर्फ आपको नहीं हो रही तो फिर आपका प्रॉब्लम है। अगर क्लास में नहीं चार मैम, स्टूडेंट्स में अगर चारों को नहीं हो रही तो फिर डेफिनेटली पीछे से कोई इशू है। जी जी ठीक है, आप बाकी फिर आपका करें, अब्दुलरहमान से उमैर आशिक है और अरसलान है, ये तीनों जी को है, इनसे रब्ता करें। अगर इनको भी नहीं हो रही तो फिर मुझे इन्फॉर्म करें, ठीक है। ओके मैम ओके। चलें जी, मीटिंग का टाइम एंड होने जा रहा है, तो ठीक है फिर आज का बहुत है मैम, कंप्लीट हो गया है। हमारे लेक्चर बहुत हो गए। कल के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट करें। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज।